हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो आज हम इस वीडियो में जो जस्ट कंडक्ट हुआ था सैटरडे, दैट इज़ 9 सितंबर, उसके सॉल्यूशंस में देने जा रहा हूँ। तो इस टेस्ट पेपर में 3 चैप्टर से क्वेश्चंस लिए थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3, और देयर आर 4 सेक्शंस A, B, C, D। तो हमने कोशिश किया है कि हर सेक्शन में कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को मैंने लिया है। सपोज करिए किसी चैप्टर में अगर 4 कॉन्सेप्ट हैं, तो हमने उसको एक एक सेक्शन में एक एक कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन लिया है, ताकि आपको इस टेस्ट में सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है इसका, और ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई द बोथ नंबर। सो यू नो, डिविजिबल बाई मीन्स the number will be dividend. Number will be dividend. Okay, divisible by these two numbers. And HCF divides the number and LCM is divisible by the number. It means HCF is divisor and LCM is dividend. So here we have to find LCM of these two numbers, that is 306. तो इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये 3 से जा रहा है, 2 से जाएगा, इट इज़ अ इवन नंबर 2153। अब 3 से जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 7 ज़ा, देन इट इज़ 17 is 1 एंड दिस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो हम सॉरी नॉट डिविजिबल बाई 2, तो हम 3 से देखेंगे। 6 5 11 18, यस इट इज डिविजिबल बाई 3 2 ज़ा 6, 1 3 1 ज़ा 3 9, एंड देन 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 73. So 73 is a prime number. So smallest number equal to LCM of 306 and 657. 306 equals 2 into 3 square into 17. And 657 equals, there is no 2, there is 3 square, there is no 17, there is 73. So LCM means common factor with highest exponent into non-common factors. So non-common factors 2 into 3 square into 17 into 73. Just you multiply it, then it is 2, it is 9 into 17 into 73. So just you multiply it, you will get the smallest number. Now next question. Next question is question 2. If the sum of zeros of a quadratic polynomial, sum of zeros. So as you know that zeros of a quadratic polynomial, we are taking alpha and beta. So it is a quadratic polynomial. तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो है, क्योंकि देखो y स्क्वायर देन y देन कांस्टेंट टर्म, इसके जीरोज अल्फा बीटा हैं। a की वैल्यू है k, y की b की वैल्यू है 2 और c इज -3k। अब कंडीशन है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। So sum of zeros equal to twice their product according to question, as per as question. Sum of zeros means minus b by a. Product of zeros is c by a. So minus b means 2 by k, and this is 2 into minus 3k by k. So minus 2 by k equals minus 6k by k. So it is minus 6k square equal to minus 2k. So it is cancelled. If you take it here, 6k square minus 2k equal to 0. So here 2k is common.
तो 3k minus 1 equal to 0. So 2k equal to 0. So k equal to 0. And 3k minus 1 equal to 0. So 3k equals 1. So k equals 1 by 3. This value is rejected. And अगर ये rejected है तो क्यों rejected है ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज रिजेक्ट ही नहीं कर सकते आप. हमने तो किया, हमें मालूम है ये रिजेक्टेड है. आपको कैसे मालूम होना ये मैं बता रहा हूं. अगर k की वैल्यू यहां रख दो तो ये 0 हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल में बदल जाएगा, इसीलिए ये वैल्यू रिजेक्टेड है. नाउ थर्ड क्वेश्चन. Question number 3. If find C if the system of pair of linear equation has infinitely many solutions. So 3x plus 3y plus 3 minus c equal to 0. The another equation is 12x plus cy minus c equal to 0. दोनों इक्वेशन का फॉर्म देखेंगे क्या ये सिमिलर हैं, सेम फॉर्म में है. एक्स वाई कॉन्स्टेंट टर्म लेफ्ट साइड, एक्स वाई कॉन्स्टेंट टर्म लेफ्ट साइड. So you can apply condition. They have infinitely many solution. So a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. C by 12 equal to 3 by c equal to 3 minus c by minus c. So I am taking this one to get C. Any two, कोई भी दो आप ले सकते हो. तो देखो C into C, that is C square equal to 36. तो C equal to plus minus square root 36. तो C equal to plus minus 6. तो C has two values. तो दोनों वैल्यू रख के देखेंगे यहाँ पे. अगर प्लस 6 रख के देखने तो C by 12, 6 by 12, 3 by 6. यहाँ 3 minus 6 by minus 6. So 6 by 12 means 1 by 2. It is also 1 by 2. Minus 3 by minus 6, which cancel 1 by 2. So k equal c equal to 6 is coming correct. Now I will take minus 6. Minus 6 by 12. 3 by minus 6. 3 minus minus 6 by minus 6. So it is 1 by 2, it is 1 by 2, minus 1 by 2, and it is also minus 1 by 2, but there it is 9 by minus 6. So 3 2s are 3 3s are 9. So it is not minus 6. They are not equal. So therefore, C equal to 6 is the correct answer, because C equal to minus 6 is not satisfying this condition. Now next question. Section is over. नाउ सेक्शन बी. अब सेक्शन बी में भी चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन, चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन, चैप्टर 3 से, लेकिन ये दूसरे टाइप का होगा. फिर अब आप देखो, पहला हमने एलसीएम निकाला, यहां मैंने एचसीएफ दे दिया 270, 405, 315. तो 270 you factorize this number, 405 you factorize this number, and 315 factorize this number. As you know that HCF is product of factors, common factors with least exponent. Product of common factors with least exponent. I hope you can do this question by yourself. So I am leaving this one. This one is very easy. You can do it. Now question number 5. Form a quadratic polynomial whose zeros are alpha is given 3 minus root 3 by 5, beta is given 3 plus root 3 by 5. So alpha plus beta equals 3 minus root 5 plus 3, 3 minus root 3, I am sorry, और यहाँ पे 3 plus root 3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम हो जाएगा. ये कैंसिल हो गया, ये आया 6 by 5. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3 minus root 3 into 3 plus root 3 by 5 into 5. So it is a square, 3 square, minus b square is 3.
y3 because root 3 square is root 9, that is 3. 6 by 25. So polynomial will be k x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta. So it is k x square alpha plus beta minus 6 by 5 x plus 6 by 25. Now 25 is LCM. So 25 is LCM. So it is 25x square. 5 5 is 25, 5 6 is 30x plus 6. So k by 25 will be 1. So it is equal to 25x square minus 30x plus 6 is the required polynomial. Now third one, that one is also very simple. Next question means third question of section B. इसको आप देखें, इसमें कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स. तो आप यहाँ पे फ्री हैं कि किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन यूज करो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन यूज करो. तो हम हमेशा बच्चों को बोलते हैं आप एलिमिनेशन यूज करो, और हमने डिसाइड किया कि हम x को एलिमिनेट करेंगे. क्यों किया? क्योंकि यहाँ भी x पॉजिटिव, दोनों जगह सेम साइन सेम साइन, तो किसी को भी आप एलिमिनेट करो आपको माइनस ही करना होगा. तो हम इसको एलिमिनेट करने का मैंने सोच लिया, लेकिन इनके कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है. तो ये पहला क्वेश्चन है, पहला इक्वेशन, ये सेकंड. तो हम क्या करेंगे, पहले एक को हम 5 से और दूसरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 5 से जब करोगे तो हर टर्म को करना, कोई टर्म अगर आप भूल गए तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. तो 20x माइनस 15y इज 5, 20x माइनस 28y इक्वल टू माइनस 8. अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेकेंड इक्वेशन के हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा. तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया. अब 28 में से 15 गया तो 13 बचेगा. 13y इक्वल टू 13, सो y इक्वल टू 1 आ गया. अब इस y की वैल्यू आप चाहे 1 में रख लेना चाहे सेकेंड में रख लेना, यू विल गेट x. तो दिस इज आल्सो ओवर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन. अब हम लोग सेक्शन सी जो 4 मार्क का क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं. सेक्शन सी का 4 मार्क का क्वेश्चन है. द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ. ये बोर्ड एग्जामिनेशन करीब करीब ये पूरे क्वेश्चन इसमें से बोर्ड में कहीं ना कहीं आए हैं, चाहे वो दिल्ली में आया हो, चाहे वो इलाहाबाद रीजन में आया हो, चाहे चेन्नई रीजन में आया हो, चाहे फॉरेन पेपर में आया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आया है. तो हम लिखेंगे लेट HCF इक्वल्स x, देयरफॉर LCM इक्वल्स 14x. Their sum is means sum of HCF and LCM is 600. तो हमारा HCF x है, ये 14x है, इक्वल टू 600. तो 15x इक्वल टू 600. So x इक्वल टू 600 by 15. We know the table of 15. 15 1 जा 15, 15 4 जा. तो x की वैल्यू आपकी आ गई 40. तो अब आपका HCF हो गया x इक्वल टू 40 और आपका LCM हो गया 14x, 14 इंटू 40 560. तो ये तो आपने निकाल लिया, लेकिन कह रहा है कि इफ वन नंबर इज 280 फाइंड द अदर नंबर. तो हमें लोगों को पता है ये a इंटू b, a इज द फर्स्ट नंबर, b इज द सेकेंड नंबर. If a and b are two numbers and their HCF and LCMs are 40 and 560, so a into b equal to HCF into LCM. तो ये हमें 280 मालूम है, b नहीं पता, ये 40 है और ये 560 है. तो b इक्वल टू 40 इंटू 560 बाई 280. 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 7 जा 7 1 जा 7, 7 8 जा 56. सो सेकेंड नंबर इज 80. दैट्स द आंसर. अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें ग्राफ ड्रा करना है. मैंने आपको बताया था ग्राफिकली इफ यू वांट टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सो एट लीस्ट यू फाइंड 3 सॉल्यूशन फॉर ईच इक्वेशन.
और वो सोल्यूशन निकालना बहुत आसान है, और सोल्यूशन आपका इंटीजर होना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, बिकॉज मैनुअली ग्राफ बनाएंगे तो वो इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं सिर्फ आपको बता दूंगा कि 3 सोल्यूशन निकाल के मैं दिखा दूंगा, बाकी आप कर लेना। तो ये हम x को बना रहे हैं, तो y पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। दूसरा हमारा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। सो 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x। हमने y क्यों सब्जेक्ट बनाया? क्योंकि जिसका कोएफिशिएंट इवन होता है उसको सब्जेक्ट बनाने पे फायदा होता है। क्या फायदा होता है वो बता दूं। जिसका कोएफिशिएंट इवन होगा तो इवन नंबर से आपको न्यूमरेटर को डिवाइड करना होगा। अगर ये ऑड है तो ऑड से करना पड़ेगा। अगर x को करो तो I think it's easy to divide a number by even number in comparison of odd number. That's why I'm making this one. अब देखो, ये मैं बता दूं आपको, यहां 3 सोल्यूशन हमें चाहिए, x y। अब यहां पे y हम 0 ले लें, आई एम सॉरी, तो ये -1 हो जाएगा। y अगर 0, y 1 ले लो तो ये 0 हो जाएगा। y 2 ले लो तो 2 - 1 1 हो जाएगा। यहां सोच समझ के लेना पड़ेगा। x y, यहां मैं x 0 लेता हूं तो देखो क्या होगा, 3 इंटू 0 इज 0, 12 माइनस 0 इज 0, 12/2 इज 6। अब मैं 1 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? 12 minus 3 1 is 3. 12 minus 3 is 9. 9/2 is not integer. It will be a fraction, decimal. तो हम 1 के जगह पे 2 लूंगा, तो 3 2 is 6. 12 minus 6 is 6. 6/2 is 3. अब फिर हमने यहाँ पे क्या लिया था? 1 नहीं लिया था, 2 लिया था। इसका मतलब हम 4 ले सकते हैं। तो 4 3 is 12. This will be 0. तो आप एक काम करना, पहले इसका ग्राफ बना लेना और फिर इसका नाम लिख देना, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब दूसरे इक्वेशन को ऐसे ग्राफ बना दिया, और ये हमारा x एक्सिस है और यहाँ पे आपका y एक्सिस होगा। इसका ग्राफ हमने बना दिया। मैं ऐसे समझा रहा हूँ, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। फिर ये बन जाएगा। तो देखो 3 पॉइंट हैं। यू हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। क्योंकि अगर हम इसको एक्सटेंड कर दे तो दिस इज अ ट्राइंगल, दिस विल बी द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय y एक्सिस एंड दीज 2 लाइंस, एंड दिस इज अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। तो बहुत पढ़ के क्वेश्चन आप करिएगा। लिखा हुआ है, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड शेप द ट्रायंगुलर रीजन लाइक दिस। तो ये तो हो गया, ये आप अपने घर पे करिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन C। तो अगर इसी तरीके से आप भी क्वेश्चंस निकालें रेफरेंस बुक से, कहीं से, ऐसे प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। यह है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। 4√3x² plus 5x minus 2√3. It is a quadratic polynomial. Question is find the zeros. हमें इसके जीरोस निकालने हैं। तो जीरोस निकालने के लिए पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ता है। फिर फैक्टराइज करके आपको 2 फैक्टर मिलेंगे, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन इक्वेट ईच फैक्टर विद 0 टू गेट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो कैसे करते हैं? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। देखो 4 2 is 8, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 is 3, सो दिस इज इक्वल टू 24। अब आप 24 को फैक्टर करो, 2 12 जा, 12 प्लस 2 is 14, नो। 12 माइनस 2 is 10, नो। देन अगेन 2 6 जा 12, नाउ 2 2 जा 4, 6 प्लस 4 10, 6 माइनस 4 that is 2, then again 2 3 जा, तो 2 2 जा 4 and 3 2 जा 6, नो। 3 2 जा ऐसे भी नहीं आएगा फैक्टर। अब हमें इसमें से हमें 2 ग्रुप निकालना होगा। अब कैसे निकालें इसे? 3 2 जा 6, सेम क्वेश्चन, 4√3x² minus 2√3x, ओके।
तो हमें यहाँ पे निकालना होगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 24. Yes, that's okay. See, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 8 minus 3 is 5. तो 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर 8 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 रूट 3. अब आप कॉमन लोगे इसके बाद, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ स्क्वायर रूट है, कॉमन लेने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि इजी हो जाए. देखो यहाँ देखो, यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसके मतलब 3 तो कॉमन होगा नहीं. यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया. यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 कॉमन हो गया. अब यहाँ से क्या बचा? 4 कॉमन हो गया, रूट 3 बचा. एक्स स्क्वायर है, ये तो एक एक्स यहाँ बचेगा. यहाँ 8 में से 4 निकल गया तो 2 बचा और एक्स निकल गया. अब यही हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, बिकॉज वी नो, हमको पता है कि दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होते हैं. कॉपी कर दिया. यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस आएगा. हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या कॉमन है. सपोज कर लीजिए नहीं समझ में आ रहा, नो प्रॉब्लम. यू कंपेयर द सेकेंड टर्म. फर्स्ट यू ट्राई टू कंपेयर फर्स्ट टर्म. पहले फर्स्ट टर्म को कंपेयर करो, देखो समझ में आ रहा है यहां से क्या कॉपी किया, क्या नहीं कॉपी किया. नहीं समझ में आ रहा है. यहां आ रहा है, हमने सिर्फ 2 कॉपी किया, स्क्वायर रूट 3 नहीं कॉपी किया. तो जो कॉपी नहीं करेंगे वो कॉमन हो जाएगा अपने आप. तो ये आप दोनों ब्रैकेट हमें पता है सेम है. तो रूट 3x प्लस 2 and 4x minus root 3, then equate each of them with 0. So here x equal to minus 2 by root 3, and here 4x minus root 3 equal to 0. So x equal to root 3 by 4. एक तो ये हो गया. अब इसमें हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप between the zeros and its coefficient. Verification. From question, A is 4 root 3, B is 5, and C is minus 2 root 3. Alpha plus beta is minus B by A. Alpha beta is C by A. Alpha is minus 2 by root 3 and beta is root 3 by 4 minus 5 by 4 root 3. Alpha is minus 2 root 3, beta is root 3 by 4, C means minus 2 root 3 by 4 root 3. Simplify them. Here 4 root 3 is LCM. 4 to the 8 minus 8, because it is minus 3, it is minus. Root 3 into root 3 is plus 3. So minus 5 by 4 root 3 minus 5 by 4 root 3. So sum of zeros is verified. Now product of zeros. It is already verified. Minus 2 root 3, minus 2 root 3, 4 root 3, 4 root 3. Now next question from section D. सेक्शन डी का क्वेश्चन 10 हम नहीं करेंगे. दैट वन इज वेरी सिंपल. इट इज गिवन दैट स्क्वायर रूट 3 is irrational. Prove that 7 minus 2 root 3 by 5. It is a mixed fraction. Sorry, it is a mixed irrational number. It means it is not a pure irrational number. ये mixed irrational number है. ऐसे केस में हम स्क्वायर रूट 3 को सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर लेफ्ट साइड इरेशनल मिलेगा, राइट साइड रैशनल मिलेगा. दैट इज द कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा. ये आप कर चुके हैं. क्वेश्चन 11 दैट आल्सो केम इन बोर्ड एग्जामिनेशन. इसमें कह रहा है x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स. तो पहले x प्लस ए फैक्टर है. x प्लस ए को 0 करो तो x इक्वल टू माइनस ए.
लिखेंगे x plus a is a factor, therefore p a minus a will be 0. अब दो पॉलिनोमियल है, एक को px लिखेंगे और दूसरे को qx लिखेंगे. हमारा px है x स्क्वायर प्लस px प्लस q, हमारा qx है x स्क्वायर प्लस mx प्लस n. यहाँ p माइनस ए स्क्वायर p माइनस ए प्लस क्यू 0, ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू. यहाँ लिखेंगे q माइनस ए स्क्वायर प्लस m माइनस ए प्लस n, ये 0, ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस n. अब दोनों इक्वेशन में देखो, दिस इज इक्वल टू 0, this is also equal to 0. Two things, if they are equal to the same thing, they must be equal to each other. तो हम बोल सकते हैं a स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन. ये ए स्क्वायर इधर आएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अभी से कैंसिल कर दो. इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है a इक्वल टू समथिंग, तो हमें a को सब्जेक्ट बनाना है. तो a को एक साइड में लाओ, तो एम ए को इधर लाया तो प्लस एम ए हो गया माइनस पी ए एन, क्यू विल गो दैट साइड माइनस क्यू, ए इज कॉमन, m माइनस p इक्वल टू n माइनस क्यू, सो a इक्वल टू n माइनस क्यू बाई m माइनस p. तो यही हमें प्रूव करना था. और देखो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और ये मुश्किल नहीं था, इजीली हम लोगों ने प्रूव कर लिया. अब इसके बाद इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ईच 80 मीटर लॉन्ग passes each other on parallel lines, means tracks are parallel line. If they are going in the same direction, the faster train takes 1 minute to pass the other completely. If they are going in opposite direction, then they are overtake each other in 3 seconds. Find the speed of each train in kilometer per hour. So here let the speed of faster train be x kilometer per hour and the speed of slower train be y kilometer per hour. As per as question, यहाँ पे दो केसेस हम डिस्कस करेंगे, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन. अब जब सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन जाएंगी तो दोनों की जो रिजल्टेंट स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ फास्टर माइनस स्पीड ऑफ स्लोअर, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो सम ऑफ देयर स्पीड. ऐसा क्यों होता है? प्रैक्टिकली आप देखो, अगर आप ट्रेन में जा रहे हो और एक ट्रेन आगे आगे जा रही है, दूसरी उसके पीछे जा रही है, तो क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है. इसका मतलब कि रिजल्टेंट स्पीड विल बी द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड. और दो ट्रेन ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जैसे जा रही हैं, ऐसे जा रही है, तो बहुत जल्दी क्रॉस कर लेती है, तो देयर रिजल्टेंट स्पीड विल बी मोर. तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो x प्लस वाई होगा, और इसमें x प्लस वाई होगा, यहाँ x माइनस वाई होगा. अब देखेंगे टाइम कितना गिवन है. टाइम गिवन है, इफ दे आर going in the same direction to cross each other same direction, they are taking 1 minute. So time यहाँ पे 1 minute है, क्योंकि ये आवर में है तो 1/60 आवर्स. यहाँ पे टाइम है
3 seconds. तो 3/60 इंटू 60 आवर, तो ये आया 1/3 1 जा 2 जा 1200 आवर, ये आ गया आपका। अब बात रही डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होगा, मैं करके दिखाता हूं अभी डिस्टेंस आपको। देखिए, जैसे ये ट्रेन है, 2 ट्रेन है ये, अब इसने इसको क्रॉस करना अब स्टार्ट किया, चलती गई चलती गई चलती गई, ये भी ऐसे जा रही, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे। दिस ट्रेन इज कवर्ड अ डिस्टेंस इक्वल टू अनदर ट्रेन बट स्टिल डिड नॉट क्रॉस। अब आगे जा रहा, आगे जा रहा, आगे जा रहा। देन अगेन कवर विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द सेम ट्रेन, यानी 80 80 160 किलो 160 मीटर होगा। 160 को अगर आप कन्वर्ट करो तो 160/1000 किलोमीटर, ये 0 0 कैंसिल, 0.16 किलोमीटर। यहां पे देखो डिस्टेंस क्या होगा। देखिए, अब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, जा रहे। अब इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस करना शुरू किया। देखो, ये ट्रेन, दोनों ट्रेनें अपने लेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर किया, लेकिन अभी क्रॉस नहीं हुआ। अब फिर अपने लेंथ के इक्वल कवर किया तो क्रॉस हो गया। इसके मतलब 80 + 80, बिकॉज दोनों की लेंथ 80 80 है। अगर डिफरेंट लेंथ होती तो तब भी ऐड कर लेते। तो यहां भी डिस्टेंस 160 मीटर हुआ एंड दिस इज इक्वल टू 0.16 किलोमीटर। अब इसके बाद क्या होता है, हम लोगों को पता है स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। यहां पे भी स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ स्पीड है x माइनस वाई, टाइम है आपका 1/60 और ये है 0.16। यहाँ है x + y, यहाँ टाइम है आपका 1/1200 0.16। यहाँ आपका आया x माइनस वाई इक्वल टू 0.16 इंटू 60। यहाँ आया आपका x + y इक्वल्स 0.16 इंटू 1200। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे भी आपको एक नंबर मिलेगा, वहां पे भी नंबर मिलेगा। दोनों इक्वेशन को लास्ट में आप ऐड कर देना तो y से कैंसिल हो जाएगा, x मिल जाएगा। फिर आप सब्स्टिट्यूट कर देना तो आपको y मिल जाएगा। तो इसके आप इसको कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।